Welcome 11th class in today's class. So how are you? After the break of 1 week, we are meeting again in your Monday class. So today we are going to start our next chapter, that is from your book Snapshot. The second chapter, first chapter we have done already, the summer of the beautiful white horse, the summer of the beautiful white horse. And now our next chapter is the address. Its name is the address. The address as its title, it indicates what is the story about. The whole story of this chapter revolves around the topic, the address. Whose address and what is the address? Actually, this is the story of Holland after World War is over. So, in this chapter, half of the story is before World War over, yani pre-World War, and half of the story is after World War over. So this is a story of a daughter who lives with her mother, and her mother had told her what to do during the World War and what is the address she is searching about, and did she find out that address to which she is searchingly hold the story. We will see in this chapter. So let's start our chapter. So this is a moving story. Moving का मतलब a very emotional. Moving से मतलब यहाँ पर चलने वाला moving नहीं है. Moving से मतलब द्रवित कर देने वाली, ना, very touchy stories को बोलते हैं. Moving, जो आपको emotional कर दे, द्रवित कर दे, which create in your emotions. So like this story. तो ऐसे कहा गया है, it is a very moving story of a daughter who goes in search of a mother's belonging after the World War in Holland was over. The narrator is the daughter of, इसमें जो उसकी mother है उसका नाम है Mrs. S. Mrs. S is the name of daughter's mother, about the daughter to whom we are going to read this story, and who died during the war. यानी जब वॉर चल रहा था उसी दौरान उसकी डेथ हो गई थी उसकी मदर की. द नरेटर वेंट ए नंबर, 46 नंबर है, एड्रेस है मैकरोनी स्ट्रीट नंबर 46, जो उसकी मदर ने उसको दिया था. तो वो उस एड्रेस पर पहुंचती है क्योंकि उसे उस एड्रेस को जो है पहली बार गई है, उसकी मदर ने सिर्फ उसे एड्रेस दिया था, उस घर में कौन रहता है उसका नाम बताया था, और व्हाट इज़ द मोटो टू गो देयर, और उस एड्रेस पर उसका जाने का जो मकसद था, मोटो था, एम था, वो क्या था. दैट यू विल सी इन दिस स्टोरी. सो एज आई टोल्ड यू, द शॉर्ट स्टोरी इज ए पॉइगनेंट अकाउंट. पॉइगनेंट से मतलब क्या होता है, वेरी मूविंग, है ना, जिसको बोलते हैं, मैंने बताया, द्रवित कर देने वाली, उसको बोलते हैं पॉइगनेंट. तो बहुत द्रवित कर देने वाली स्टोरी है of a daughter who goes in search of her mother's belonging after the war in Holland. When she finds them, the object evokes memories of her earlier days. और जब वो सारी चीज़ें जो उसकी थी, हुआ करती थी, उन सब को उस एड्रेस पर देखती है, तो वो सारी चीज़ें उसके अंदर उसकी मदर की याद दिला देती हैं. ऐसा होता है ना कि कोई प्रियजन जो हमसे बिछड़ गया है या जो दुनिया छोड़ के चला गया है, अब हमारे पास नहीं है. Whenever we see the things that belong to him or her, the belongings of that person, we became very emotional. वो सारे हम चीज़ें देख के हम इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि वो हमें उन बीते टाइम की याद दिलाती हैं, वो सारी चीज़ें जब वो समय हमने उस व्यक्ति के साथ बिताया होता है कि क्या हुआ करता था, कैसे इस चीज़ों को हाँ यूज़ करते थे, कब देखते थे, क्या था, वो सारी चीज़ों से we start to remember that person, और हम पास्ट में खो जाते हैं. तो ऐसे ही वहाँ पर उन सब चीज़ों को देख के evokes memories of her earlier life. However,
she decided to leave the things, to leave them all behind and resolve to move on. हालांकि उसने उन सब चीज़ों को वहीं छोड़ दिया और वो आगे बढ़ गई, है ना। तो ये हम देखेंगे। Do you still know me? I asked. मैंने पूछा कि क्या तुम अभी भी मुझे जानती हो? The woman looked at the searchingly. She had opened the door a chink. एक chink के मतलब क्या होता है? chink का मतलब कि हम दरवाजा जो है ऐसे पूरा नहीं खोलते, हम ऐसे इतना खोल के सिर्फ बात कर रहे हैं। यानी जब हमें डर हो कि कोई धक्का मार के अंदर ना आ जाए तो हम क्या करते हैं, कोई पूछने हाँ भाई क्या काम है, कोई जैसे सेल्समैन होते हैं, भीख मांगने वाले होते हैं, कुछ बेचने वाले टाइम टू टाइम हमारी गली में आते रहते हैं, बैंडा बॉर्ड जो होते हैं, तो वो अगर आवाज़ लगा रहे हो या बैल करें तो हम जाएंगे दरवाजे खोलें, और जब देखेंगे कि हम वो हमारे घर के अंदर आने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, कोई परिचित नहीं है, कोई फैमिली फ्रेंड नहीं है, तो क्या आपको दरवाजा खोलोगे हाँ भाई आओ बताओ क्या, ऐसे नहीं ना। तो वी जस्ट ओपन द चिंक, वो दरार होती है जो हम दरवाजे को सिर्फ दरार से जो बात कर रहे हैं, तो उसने भी उस दरार से जो है चिंक से जो है बात की। शी हैड ओपन द डोर, एक चिंक सिर्फ जरा सा खोला, एंड आई केम क्लोजर टू स्टूड ऑन द स्टेप, मैं उसके पास आने के लिए वहाँ की स्टेप चढ़ गई, जो पैड़ी बनी थी नीचे उस पर चढ़ गई। नो आई डोंट नो यू, उसने क्या जवाब दिया, नहीं मैं तो नहीं जानती तुम्हें। आई एम मिसेस एस डॉटर, मैंने अपना परिचय दिया कि कौन हूँ मैं मिसेस एस की डॉटर हूँ, अपनी अपनी मदर का नाम बताया। She held her hand on the door as though she wanted to prevent it opening. वो लगातार अपना हाथ वहीं पर दरवाजे पर रखी रही, जैसे वो उस दरवाजे को प्रिवेंट करना ना, रोकना, कि खुलने से रोकना उसे रोकना चाहती थी, दरवाजा कहीं ना खोल के अंदर ना आ जाऊँ, तो इसलिए उसने अपना हाथ वहीं दरवाजे पर रखे रखा। एंड फर्दर her face gave absolutely no sign of recognition. अगर कोई आपके घर आए तो आप उसे जानते हो, अरे आंटी आइए आइए, अरे आप, है ना, अच्छा आप, तो ऐसे करके हमारे चेहरे के एक्सप्रेशन होंगे। लेकिन कोई अजनबी हो जिसे हम जानते ना हो तो हम हमारा चेहरा कैसा होगा, सपाट, नो इमोशन विल शो, ना दुख के ना खुशी के, कोई चेहरे पे हम इमोशन नहीं शो करेंगे। तो करेंगे उसके चेहरे पर मुझे देख के कोई इमोशन नहीं आएगी जैसे मुझे जानती। सेम उसने वैसे ही विदाउट एनी एक्सप्रेशन उसने सपाट अपना फेस रखा। एंड शी कैन स्टेयरिंग एट मी, स्टेयर है ना घूरना, और लगातार वो मुझे घूरती रही चुपचाप, साइलेंस, विदाउट टॉकिंग एनीथिंग, विदाउट स्पीकिंग ए सिंगल वर्ड, शी वाज जस्ट स्टेयरिंग एट मी, मुझे केवल घूरती रही। परहैप्स आई वाज मिस्टेकन, मुझे लगा शायद मैं ही गलत घर में आ गई, हो सकता है ये एड्रेस वो ना हो, ये लेडी वो ना हो जिसे मैं ढूंढ रही हूँ, या ये घर वो ना हो जिसके घर मुझे जाना है। I thought perhaps it is not her, ये उसका घर ना हो जिससे मुझे मिलना था। I had seen her only once, क्योंकि मैंने जिससे मुझे मिलने आई हूँ उस लेडी को सिर्फ एक बार देखा था। वो याद करती है कि मैं, होता है मुझे पहचानने में गलती हुई हो, मैं जिस घर में आ गई हूँ या जिस लेडी से बात कर रही हूँ ये वो ना हो जिसने मेरे को ढूंढना था, जिससे मेरे को बात करनी थी, क्योंकि मैंने I have saw her only once, मैंने उसे केवल एक बार देखा था, इसलिए। फ्लीटिंगली, फ्लीटिंगली का मतलब क्या होता है, लास्टिंग ओनली शॉर्ट टाइम, यानी वो भी फ्लीटिंग मतलब ऐसे हल्के से थोड़े से टाइम के लिए, चलते फिरते, मतलब ऐसे नहीं उससे बैठ के बातें कर रही हूँ, बहुत उससे बात की हो, आई हैव टॉक ए लॉट, नो, ऐसे ही चलते फिरते मैंने उसको देखा था, फ्लीटिंगली। एंड दैट वॉज ईयर्स अगो, दूसरा कारण वो भी इतने साल पहले, इतने साल की बात हो गई, हो सकता है उसकी कुछ शक्ल चेंज हो गई हो कि वो मुझे भूल गई हो, तो यानी कि वो भी इतने साल पहले। It was most probably that I had run the wrong bell, हो सकता है मैंने गलत घर की यानी गलत एड्रेस की घंटी बजा दी हो, इस घर में मुझे नहीं जाना था, उस घर की घंटी बजा दी हो, ये वो घर ना हो जिसके लिए मैं आई हूँ, जिसमें जाने के लिए। The woman let go of the door and stepped out to the side, उसने देखा कि मैंने मान लिया कि मैं वो नहीं हूँ, तो वो अपना करके जाने लगी घर से, अपनी सीढ़ियों से। She was wearing my mother's green knitted cardigan, और जब वो सीढ़ियों से उतर के जाने लगी, वो दरवाजा इतना सही खुला हुआ था तो मुझे दिखाई दिया, क्या उसने दरवाजा बंद नहीं किया था, दरवाजा बंद करके नहीं लगे, दरवाजा नहीं खुला छोड़ के अंदर जाने लगी, तो अब मुझे वो उसका पूरा दिखाई दी पीठ, क्या उस लेडी ने वही मेरी मदर वाला कार्डिगन पहना हुआ था। उसने पहचान लिया कि नो आई एम ऑन द राइट एड्रेस, यही वो लेडी है जिससे मैं मिलने आई हूँ। क्यों पहचान लिया, क्योंकि अपनी मदर का कार्डिगन उसने पहचान लिया था जो उस लेडी ने पहना हुआ था। शी वॉज वियरिंग माई मदर्स ग्रीन knitted
कार्डिगन। द वुडन बटन्स वर रादर पेल फ्रॉम वॉशिंग, जो उसके ऊपर लकड़ी के बटन लगे हुए थे वो थोड़े फेड हो गया था, उनका कलर बार बार धुलने से हो गया उनको। कि पहचान लिए मैंने, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर सेम वही लकड़ी वाले बटन लगे हुए थे जो मेरी मदर के कार्डिगन थे। वैसे भी हमारी कोई चीज़ होगी तो हम चाहे हज़ारों में हो तब भी पहचान लेंगे ना अपनी चीज़ को, हर व्यक्ति को अपनी चीज़ की पहचान होती है। तो उसमें कह रही है कि उसके जो बटन थे वो थोड़े फेडेड हो गए थे। शी सॉ दैट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन, उसने भी नोट कर लिया कि मैं उसके कार्डिगन को देख रही हूँ। एंड हाफ आई हरसेल्फ, वो पीछे एकदम से दरवाजे के पीछे हो गई ताकि मैं वो मुझे दिखाई ना दे। अपने आप को उसने दरवाजे के पीछे छुपा लिया। अगेन बिहाइंड द डोर बट आई न्यू नाउ दैट आई वाज राइट, मुझे विश्वास हो गया था कि नहीं, मैं गलत घर में नहीं हूँ, यही वो एड्रेस है जिस घर में मेरे को आना था। वेल यू न्यू माई मदर, मैंने पूछा तुम मेरी मदर को जानती हो? आई आस्क्ड हैव यू कम बैक, अरे तुम दोबारा आ गए? मैंने कहा ना कि मैं तुम्हें नहीं जानती, तुम दोबारा आ गए। सेड द वुमन आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक, मुझे लगा कोई नहीं आएगा, तुम जा चुकी होगी। ओनली मी, अरे कोई और नहीं है, मैं ही तो हूँ, और कौन वापस आया? मैं ही तो हूँ। A door opened and closed in the passage behind her. A musty smell emerged. तभी जिस रास्ते से, यानी जो पैसेज बना हुआ था, छोटी सी जगह बनी हुई थी, वहीं से आगे चल के क्या था, एक दरवाज़ा खुला उसके पीछे। और दरवाज़ा खुलने से क्या हुआ कि आपने देखा होगा अगर कहीं से कोई स्मेल आ रही हो तो दरवाज़ा खुलने से एकदम और ज़्यादा आती है। तो जैसे ही वो अंदर से दरवाज़ा खुला, ए मस्टी स्मेल एमर्ज्ड। ए मस्टी एमर्ज का मतलब उठना, एमर्ज का मतलब होता है ऊपर उठना। तो मस्टी सीलन वाली, एक सीलन वाली जो स्मेल थी वो दरवाज़ा खुलते एकदम बाहर की तरफ मेरी तरफ आई, यानी उठी, वहाँ से निकली और बाहर तरफ आई। आई रिग्रेट आई कांट डू एनीथिंग फॉर यू, मैंने उसके लिए कहा, मैंने कहा ना कि मुझे आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। रिग्रेट का मतलब तू कौन है, तो मुझे दुख है कि मैं तुम्हें नहीं जानती, तो इसलिए मैं तुम्हारे कुछ नहीं कर सकती, तुम्हारे काम नहीं आ सकती, मैं जानती नहीं तुम कौन हो। आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन, आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर एन मोमेंट। मैंने कहा, आई प्लेड इस लेडी ने, उस लड़की मिसेस एस की डॉक्टर ने, कि देखो मैं ट्रेन से चल के सिर्फ तुमसे मिलने के लिए थोड़ी सी 2 मिनट बात करने के लिए यहाँ आई हूँ, ऐसे मत करो, मैं ट्रेन से आई हूँ यहाँ इतनी दूर चल के, है ना, और सिर्फ तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ। मैंने कहा नहीं, इस समय तो मेरे लिए सुविधाजनक नहीं है कि मैं तुमसे बात करूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। जैसे कई बार कोई हमारे सेल्समैन आते हैं, मैडम देख लो, मैडम देख लो, अरे भाई मेरे पास टाइम नहीं, बाद में कह देते ना ऐसे ही। तो उसने भी कहा कि देखो इस टाइम तो मेरे पास टाइम नहीं है, इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी टू टॉक टू, इस समय नहीं मैं तुमसे बात कर सकती हूँ, बाद में आना। आई कांट सी यू अनदर टाइम, और देखो दोबारा बता रहे हैं, आई कांट सी, मैं चाहती नहीं हूँ दोबारा यहाँ पर। She nodded and cautiously closed the door. और उसने मुझे देखते हुए सिखाया, देखो दोबारा बताना, वार्निंग देते हुए, और दरवाजा पट से बंद कर, उसने बंद कर दिया। एंड नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब, जैसे कि वो नहीं चाहती थी कि घर के जो अंदर लोग हैं वो डिस्टर्ब ना हो मेरे आने से, या उन्हें पता ना चल जाए कि दरवाजे पर कोई है, उन्हें पता ना चल जाए कि मैं दरवाजे पर हूँ या मैं कुछ आना चाहती हूँ या पूछना चाहती हूँ, तो दूसरे लोग डिस्टर्ब ना हो। दैट्स वाई शी शट द डोर, दरवाजा उसने एकदम से बंद कर दिया। अब आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप, मैं वहीं सीढ़ी पे जहाँ खड़ी थी, पैड़ी में खड़ी रहती, मुझे स्लो बना रहता है या पैड़ी बनी रहती है, दरवाजा ऊंचाई पे लगा हुआ हो गली से, तो कह रहे मैं वहीं पर खड़ी रह गई जहाँ खड़ी थी। द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव, बे विंडो का मतलब जो लंबी सी खिड़की होती है, तभी वहाँ से एक पर्दा हिला, यानी मैंने देखा खिड़की में से पर्दा हटा के कोई देख रहा है। बे विंडो मूव, समवन स्टेयर्ड एट मी एंड वुड देन हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड, किसी ने मुझे वहाँ से देखा पूरा, और शायद फिर उस लेडी से पूछा कौन हूँ मैं, क्यों आई हूँ। ओ नथिंग, द वुमन वुड हैव सेड इट वाज नथिंग, उसने कहा नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही कोई नहीं, मुझसे बताया नहीं मैं कौन हूँ कि मैं किस लिए आई हूँ, अरे कोई नहीं ऐसे ही, और ऐसे कह के उसने उसको आंसर दिया। आई लुक एट द नेम प्लेट अगेन, अब मैंने जो उनके घर के बाहर एड्रेस, जो नेम प्लेट लगी रहती है ना जिसमें आपका नाम लिखा रहता है, मकान नंबर लिखा रहता है, गली नंबर लिखा रहता है, तो करीब वो नेम प्लेट मैंने दोबारा से क्या लिखा हुआ था उस पर, डॉर्लिंग्स, जैसे लिखा था शर्मास, वर्मास,
चौधरी ऐसे लिख देते हैं ना सरनेम से, ऐसे लिखा था डार्लिंग। इट सेड इन ब्लैक लेटर्स ऑन द वाइट एनेमल, ब्लैक कलर के लेटर्स, ब्लैक कलर से लिखा हुआ था और वाइट एनेमल था जो नीचे जिस पे लिखे हुए थे। एंड ऑन द जैम ए बिट हायर, और उसके ऊपर ऊंचाई में जैम करके लिखा हुआ था नंबर 46, यानी मकान नंबर क्या था, नंबर 46। As I was slowly back to the station, I thought about my mother. जब मैं वापस जा रही थी तो मैंने अपनी मदर के बारे में सोचा, who had given me the address years ago, जिन्होंने मुझे बहुत साल पहले वो एड्रेस दिया था। It had been in the first half of the war, कब की बात है वो, कौन सा, जैसे ही मैंने 46 नंबर पढ़ा और मैं वापस ट्रेन की तरफ जाने के लिए अपने मुड़ गई, तो जब मैं रास्ते से जा रही थी, वो कह रही है कि मैंने याद किया कि मेरी मदर ने जब वॉर शुरू होने से पहले मुझे ये एड्रेस दिया था। कौन सा दिन था? I was home for a few days and it struck me immediately that something or other about the room had changed. मैं घर पर ही थी यानी उस टाइम के लिए, और मैं उस दिन घर में ही थी और मैंने देखा कि घर में कुछ चेंज नज़र आ रहा है मुझे। यानी आपकी क्लास में फर्नीचर रखा है या आपके घर में रखा है, तो मान लीजिए एक दिन मम्मी जो है सोफ़ा इधर से उठा के इधर कर देती है, या चेयर इधर से उठा कर देती है, या बेड की साइड में रख देती है, तो जब आप देखोगे आगे तो कुछ चेंज है घर में। आज क्या चेंज है ये सब में नहीं आया, आज कुछ चेंज सा लग रहा है ना। तो ऐसे ही करेगी, मुझे लगा कि समथिंग इज चेंज, तो कह रही है कि इमीडिएटली द समथिंग और अदर अबाउट द रूम हैड चेंज। आई मिस वेरियस थिंग्स, क्या चेंज था कि बहुत सारी जो चीज़ें पहले हुआ करती थी आज वो अपनी जगह पर नहीं रखती थी, आज वो नहीं थी वहाँ कमरे में। तो मैंने फिर नोट किया कि क्या बदला हुआ है कमरे में, कि पहले यहाँ पर कुछ जो चीज़ थी जो रखा था वो आज नहीं रखी है। ये सोच के उसने कहा कि आई मिस वेरियस थिंग्स, माई मदर वॉज सरप्राइज, आई शुड हैव नोटिस व्हाट इट बी। मेरी मदर को बड़ा आश्चर्य हुआ जाने कि मैंने इतनी जल्दी इसके कैसे मतलब इस चीज़ को पता लगा लिया कि कोई चीज़ यहाँ से गायब है, जो पहले यहाँ रखी हुई थी कोई चीज़ है जो यहाँ से हटा ली गई है। मेरी मदर को बड़ा आश्चर्य हुआ, तो फिर उन्होंने जो है मेरे को कहा दैट शी टोल्ड मी अबाउट मिसेस डॉर्लिंग, जो अभी वहाँ पे लिखा हुआ था घर के ऊपर डॉर्लिंग्स। तो कह रही वो नाम जो है, तब मुझे याद आया कि उन्होंने बताया मिसेस डॉर्लिंग का नाम बताया, और क्या कहा, आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर बट अपेरेंटली शी वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ माई मदर, कि मैंने उस लड़की से कभी मिली नहीं थी, लेकिन स्पष्ट रूप से मुझे ये मालूम था कि वो मेरी मम्मी की परिचित है, यानी जानने वाली है, नॉट फ्रेंड नॉट नेबर। एक्वेंटेंस इसको बोलते हैं परिचित, यानी ऐसे लोग जिन्हें हम जानते हों, उनका नाम, उनका घर, उनका क्या वो करते हैं। जैसे आपके स्कूल में इतनी पढ़ने वाली गर्ल्स हैं तो सबका नाम थोड़ी आप जानती हैं, आपको सबको थोड़ी मालूम है कि ये लड़की कौन सी क्लास में है, ये कौन सी क्लास में है, ये कहाँ रहती है, नहीं ना। तो हमारे जो कैटेगरीज होती है हमारे लोगों की, वो 4 तरह की होती है। एक होते हैं हमारे फैमिली मेम्बर्स, एक जो हमारे रिश्तेदार हैं रिलेटिव्स, तीसरे जो हमारे फ्रेंड्स हैं, फोर्थ हमारे नेबर्स जो हमारे पड़ोसी हैं, है ना। तो इन सबको तो हम अपने घर इनके घर जाते भी हैं, बुलाते भी हैं। लेकिन एक और कैटेगरी होती है जिन्हें हम बोलते हैं एक्वेंटेंसेस। एक्वेंटेंस का मतलब है कि हम उस व्यक्ति से मिलते हैं रोजाना, कहाँ, वो भी बस स्टॉप पे अपने बेटी को छोड़ने आती है, सपोज उनकी बेटी किसी और स्कूल पढ़ती है, तो आप उस लेडी को जानते हैं कि भाई इसका बेटा से चलता है, लेकिन आप जो है एक दूसरे के क्या हो, फ्रेंड नहीं हो, नेबर नहीं हो, रिलेटिव्स नहीं हो, सिर्फ क्या है परिचित, कि हम एक दूसरे का नाम जानते हैं। तो ऐसे ही करें कि वो मेरी मदर की क्या थी, परिचित थी। इसलिए उन्होंने कहा कि सो whom she had not seen for years, जिस लेडी को उन्होंने बहुत टाइम से देखा नहीं था, she had suddenly turned up and renewed their contact since then she had come regularly। यानी जब वो अपने शहर में रहते होंगे मान लो, तो तब उसके बाद से इस शहर में आने के बाद मेरी मदर ने उनको देखा नहीं था। अचानक वो उसी के शहर के रहने वाली थी और वो किसी शहर में शिफ्ट हो गई, तो उन्होंने उनको पहचान लिया और फिर दोबारा से उनका जो रिलेशन था यानी वो दोबारा से रिन्यू हो गया। अब वो अक्सर हमारे घर आने लगी जो मेरी मदर की परिचित थी। शी हैड कम रेगुलरली। Every time she leaves here, she takes something home with her, said my mother. She looked all the table silver in one go, and then the antique plates that hung there. She had trouble lugging those large vessels. कि इसके बाद से जब भी वो हमारे घर आती, कोई ना कोई चीज़
कभी वो किस के लिए एक बार में जितना हमारा सिल्वर का जो क्या था कटलरी थी, टेबल वेयर बोलते हैं, जो टेबल पर रखने वाले बर्तन होते हैं जिनमें हम खाते हैं, ठीक है। तो वो कटलरी होगी या नाइफ्स होंगी, फॉक्स होंगे, वो होंगी, स्पून्स होंगे, तो कह रहे वो सारा एक बार में ले गई। फिर उसके बाद दूसरी बार जब आई तो फिर जो है उसने क्या किया, उसके बाद वो जो हमारी एंटीक बोलते हैं, बहुत पुरानी हो, वैल्यूएबल हो, यानी बहुत पुराने टाइम की जो कोई चीज़ हो तो उसको हम बोलते हैं एंटीक, यानी प्राचीन। उसकी कीमत पुराने होने से और ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे पुरानी शीशम का अगर कोई फर्नीचर होगा तो उसे बोलेंगे एंटीक, क्योंकि शीशम जो पुरानी होती है वो खराब नहीं होती, तो वो इतनी पुरानी हो गई है, लाल है, तो इसलिए उसका फर्नीचर और कीमती हो जाएगा। आपने देखा होगा किसी चीज़ को एंटीक बनाने के लिए उनके ऊपर वो जेड ब्लैक कलर का जो है वो कर देते हैं, कोट उसमें डुबा देते हैं ताकि वो एंटीक लगे। तो ऐसे ही करेंगे। फिर उसके बाद वो दूसरी बार क्या ले गई, जितनी भी एंटीक प्लेट्स थी हमारे घर में जिन्हें हम एज ए शो पीस वॉल हैंगिंग भी यूज़ करते थे, खाते भी थे, वो वाली प्लेट्स ले गई। फिर उसके बाद शी हैड ट्रबल लगिंग, हालांकि उस सबको सामान को दोज लार्ज वेसेस, इतने बड़े बड़े जो बर्तन थे उस सामान को ले जाने में उसको दिक्कत हो रही थी, उससे खींचा नहीं जा रहा था। लेकिन एंड आई एम वरीड शी गॉट ए क्रिक, और मुझे लग रहा था कि कहीं उसकी कमर में चमका ना आ जाए। क्रिक का मतलब कोई झटका, क्योंकि मुझे जब वो ले जा रही थी सामान तो मेरे को ये भी डर लग रहा था, इतना भारी सामान वो खींच रही है तो कहीं ऐसा ना हो कि उसकी जो घर उसका जो वो है उसमें कोई दर्द ना जो है अकड़ ना जाए उसमें। इसको हम बोलते हैं ना, अरे मेरी तो कमर अकड़ गई, हिला ही नहीं, मुड़ा ही नहीं जा रहा, तो कोई नस में नस चढ़ जाती है तो उसको बोलते हैं, है ना। तो मुझे लग रहा था इतना भारी सामान खींचने से कई बार हो जाता है ना, तो ऐसे ही मेरे को लग रहा है कि कहीं इसकी कमर में जो है कोई क्लिक ना आ जाए, चमका ना आ जाए, अकड़ ना आ जाए, ये मेरे को डर लग रहा था। तो इस तरह से फिर मैंने कहा कि उसके बाद शी आई हर बैग फ्रॉम द क्रॉकरी, माई मदर शुक हर हेड पुटिंगली, आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, मेरी मदर ने कहा कि नहीं ले जाने दो उसको, है ना। और फिर उसके बाद जब मैंने देखा कि मेरी मदर जो है बताना नहीं चाहती तो मैंने उसके बाद कभी पूछा भी नहीं। शी suggested it to me herself, she even insisted, उसने कहा कि मैंने ही उसको कहा, बल्कि कि मैंने कहा कि भाई अपनी सामान लेके जा रही है, क्यों लेके जा रही है, तो मेरे लगा नहीं मैंने ही कहा उसको सामान ले जाने के लिए, मैंने उसको सजेस्ट किया, अपनी मर्द से ले जा रही है वो। एंड शी इवन इंसिस्टेड, शी वांटेड टू सी, उसने मुझे कहा कि हाँ ठीक है मैं इसको सबको सामान को अपने घर रख लूँगी, क्यों, क्योंकि वो इससे हमारा सामान सुरक्षित रहेगा, सेफ रहेगा। यानी अगर मान लो हमें युद्ध के दौरान यहाँ से भागना पड़ा और सारा सामान लुटेरे लूट ले जाएंगे, अगर हम नहीं रहेंगे, तो ऐसा करने से क्या होगा कि हम अगर कहीं और चले गए तो आगे हम अपना सामान वापस ले सकते हैं, वो अपने घर में सेफ रख लेगी, उसके घर में रखने की जगह है। तो इसलिए कह रही कि इवन मैंने उसको कहा, और इफ़ वी हैड टू लीव हियर वी शैल लूज एवरीथिंग, क्योंकि अगर हमें यहाँ से जाना पड़ा तो हमारा सारा सामान भी खराब हो जाएगा। हाफ यू एग्री विथ हर दैट शी वुड कीप एवरीथिंग, कहने लगी और आप इसमें सहमत हो गई कि वो सारा सामान रख लेगी। मुझसे पूछा एज इफ दैट्स नेसेसरी, माई मदर क्राइड, हाँ क्यों नहीं, जरूरी भी है ये सब कि भाई वो अपना सारा सामान अपने पास रख ले, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी है। उसने कहा ऐसा करने के लिए, तो तब उसने कहा कि फिर जो है उसके बाद मैंने एज दैट्स माई मदर क्राइड, इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट, कि ये तो इंसल्ट करना होगा अगर मैं उससे पूछूँ भाई बाद में तुम मैं वापस कर दोगे ना सामान जो रख रही हो, और एक तो वो सामान रखने का रिस्क ले रही है और मैं उससे बोल रही हूँ कि भाई बाद में तुम हमारा सामान वापस तो कर दोगे, रख तो नहीं लोगे अपने पास, तो ये क्या होगा, उसकी इंसल्ट करना नहीं होगा। इसलिए एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी इज रनिंग, उसके खतरे के बारे में कितना बड़ा खतरा उठा रही है, वो हमारा सामान अपने घर में रख के। ईच टाइम शी गोज आउट ऑफ आवर डोर विथ ए फुल सूटकेस और बैग, इस तरह से हर बार जब भी वो अपने घर जाती तो अपने घर क्या लेके जाती, एक बड़ा सूटकेस हमारे घर के सामान का भरा हुआ। माई मदर सीम टू नोटिस दैट आई वॉज नॉट एंटायरली कन्विंस्ड, और मेरी मदर ने यह नोटिस कर लिया था कि मैं इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ कि सारा सामान उसको ले जाने दिया जाए, और वो इससे ये भी ना पूछे कि वो वापस तो कर देगी। शी लुक्ड एट मी रिप्रूविंगली एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट, और इन्होंने मेरी तरफ रिप्रूविंगली, यानी जैसे कि वो इस बात से गुस्सा हो, सहमत ना हो, इस तरह से उन्होंने मेरी तरफ देखा, यानी जैसे वो मेरे को झिड़कना चाहती हो, और फिर उसके बाद हमने इस बारे में कोई बात नहीं करी। मीनवाइल आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन, इसी दौरान मैं स्टेशन तक पहुंच गई थी, ये बात सारी बातें सोचते सोचते।
एंड विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन टू थिंग्स ऑन द वे, और मेरा ध्यान भी उन चीज़ों की तरफ नहीं गया था। कौन सी चीज़ें? जो रास्ते में मैं देखती थी, जब मैं पहले उस रास्ते से गुजरा करती थी तो जो चीज़ें मुझे दिखाई देती थी वो सारी चीज़ों की तरफ अब मेरा ध्यान भी नहीं गया था। इट वॉज मॉर्निंग आफ्टर दैट डे माई मदर हैड टोल्ड मी, और फिर से मुझे याद आया आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर, कि जब मैं उस लेडी से पहली बार मिली थी तो वो टाइम मुझे याद आया। कौन सा दिन था? उस दिन क्या हुआ था कि इट वॉज अ मॉर्निंग, सुबह हुई थी, आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी, कि मेरी मदर ने उसके बारे में बताया। आई हैड गॉट अप लेट, उसी में थोड़ा देर से उठी थी, एंड कमिंग डाउन स्टेयर, मैं सीढ़ी पे आ रही थी, मतलब बेडरूम ऊपर था तो मैं नीचे आ रही थी। आई सॉ माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट, मैंने देखा कि मेरी मदर किसी को बाहर छोड़ने जा रही है। ए वुमेन विथ ए ब्रॉड बैग, कौन थी? एक लेडी थी जिसकी बहुत चौड़ी सी कमर थी, उसको वो छोड़ने जा रही थी। देयर इज़ माई डॉटर सेड माई मदर, तभी मेरी मदर ने मेरे को देख के उस लेडी से मेरे को मिलवाया, मीट हर, शी इज़ माई डॉटर। शी बिकॉन टू मी, उन्होंने मुझे बिकॉन का मतलब आवाज़ लगाना, बुला के अपने पास बुलाना, दैट इज कॉल्ड बिकॉन, इशारे से बुलाना। द वुमेन नॉडेड एंड पिक्ड अप द सूटकेस, उसने कहा अच्छा जैसे बुलाया तुम्हारी लड़की है, और फिर उसने वो सूटकेस लेके अंडर द कोट रैक शी वॉर ए ब्राउन कोट एंड शेप एज स्किपो, जहाँ पर मैंने बताया ना कि विदेशों में क्या होता है, बारिश और ठंड से बचने के लिए क्या होता है, घर के दरवाजे पे स्टैंड रखा रहता है जिस पर क्या रखते हैं, बाहर से आते टाइम अपना कोट, कि अगर बारिश हो रही है तो पानी लगा होगा, अगर स्नो वहाँ पर पड़ रही है तो वो स्नो लगी होगी, तो उस कोट को लाकर तो वो बाहर ही टांग देते हैं। अम्ब्रेला अपना है, तो वहाँ विदेशों में ये चीज़ें जरूर पहनते हैं बाहर जाते टाइम, तो वो सारी चीज़ें उसने वहीं पर उसके ऊपर रख दी, उसने कहा। तो वो उसने वहाँ से उठाया वो सारा सामान, एंड डज शी लीव फार अवे, मैंने पूछा क्या वो दूर रहती हैं? आई आस्क्ड सीइंग द डिफिकल्टी शी हैड गोइंग आउट द हाउस विद द, जब मैंने देखा कि कितनी परेशानी हो रही है उनको इतना भारी सामान सूटकेस ले जाने में, तो मैंने कहा बहुत दूर रहती है क्या ये? तब मेरी मदर ने बताया था इन मैक्रोनी स्ट्रीट सेट माई मदर नंबर 46, रिमेंबर दैट, याद रखना, एड्रेस को याद रखना, क्योंकि बाद में हमें सामान लेके जाना होगा, तो इसलिए भूल मत जाना कहाँ रहती है, मैक्रोनी स्ट्रीट नंबर 46, और इसलिए मुझे याद था। आई हैड रिमेंबर, और मैंने उसको याद रखा, बाई आई हैड वेटेड ए लॉन्ग टाइम टू गो देयर इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन, लेकिन जब हमारा जो है देश आज़ाद हो गया, यानी वॉर ख़त्म हो गया, तब बहुत टाइम बाद, एकदम से ख़त्म होते नहीं, काफ़ी टाइम बीत गया जब मैं वहाँ पर गई दोबारा। इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड ऑल दैट स्टोर, हालांकि मुझे उन सब चीज़ों पर कोई इंटरेस्ट नहीं था। कौन सा सामान जो मेरी मदर ने उसको दे दिया था, उस चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। क्या था? फिर क्यों गई थी लेने के लिए? शी स्टडीइंग एंड नेचुरली आई वॉज ऑल्सो रादर अफ्रेड, बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि मैं तो और उन चीज़ों से डरती थी। क्यों डरती थी? अफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड, afraid of being confronted with things that had belonged to a connection that no longer existed, which were hidden away in the cupboards and boxes and waiting in vain until they were put back in their place again, which had endured all those years because they were things. कि मुझे तो उन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट भी नहीं था जो इतने टाइम से कबर्ड और बॉक्सेस में पड़े थे, और उनको वेट कर रहे थे कि उनको बाहर निकाल के फिर धूप लगा के फिर से लगाया जाए। तो मुझे उन चीज़ों में तो कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो तो मेरे लिए वेस्ट थे कि मैं क्या करूँगी उन चीज़ों का। वो अननेसेसरी कबर्ड और बॉक्सेस में पड़े रहेंगे, अगर मेरे पास होते भी तो मैंने क्या करना था। आई हैड रिमेंबर्ड बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल, लेकिन जैसे जैसे वॉर ख़त्म हुआ सब चीज़ें नॉर्मल होने लगी। ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी ए लाइटर कलर, क्या मतलब है यहाँ पे? ब्रेड टू बी ए लाइटर कलर, कि ब्रेड अब हल्के कलर की होने लगी थी। देयर वॉज ए बेड यू कुड स्लीप इन अंडरनीथ, यानी आपके पास अब एक बिस्तर था, आप आराम से उस पर सो सकते थे। यानी वो सारी चीज़ें कौन सी कह रही है? युद्ध के बाद की वॉर की जो स्थिति होती है वो बड़ी ख़राब होती है। आप जो है बिल्कुल भी रात को आराम से सो नहीं सकते, पता नहीं कब ब्लैकआउट हो जाए, कब आपके ऊपर अटैक हो जाए दूसरे कंट्री की जो आर्मी है उसका, तो इसलिए तब आप रोज़ डरे रहते हैं, चाहे रात हो चाहे दिन हो। तो इसलिए वो पता नहीं अगले दिन ब्रेड वाला आए ना, तो इसलिए एक साथ कई सारी ब्रेड लेकर रख लेते हैं, बासी ब्रेड खाते रहते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब ब्रेड बासी होती है तो कलर चेंज हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे कह रहा है कि अब ऐसा नहीं था, अब ब्रेड फिर से लाइट कलर में होने लगी थी, अभी फ्रेश मिलने लगी थी, रात को हम आराम से अपने बिस्तर पे सो सकते थे।
और इसलिए अब वो कह रही है कि ए रूम विथ ए फ्यू व्यू यू वर मोर यूज टू ग्लांस एट ईच डे। अब आपके पास अपना एक कमरा था जहाँ से आप रोज़ देख सकते थे। एंड वन डे आई नोटिस्ड आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल द पोजीशन। और एक दिन मैंने अपने आप को पाया कि मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ उन सारी चीज़ों को दोबारा देखने के लिए, दोबारा मिलने के लिए, दोबारा जो कौन सी चीज़ें जो मेरी मदर के हुआ करती थी कभी, मेरी मदर का कार्डिगन, टेबल क्लॉथ, सिल्वर वेयर्स, है ना, वो सारी चीज़ें जो मेरी मदर यूज़ करती थी। और अब उसकी मदर क्योंकि अब इस दुनिया में उसके पास नहीं थी, तो उन सब चीज़ों को अपनी मदर को याद करने के लिए देखना चाहती थी, जो उसकी हुआ करती थी उन्हें छूना चाहती थी, है ना। तो इसलिए तो वो कह रही है कि इसलिए मैं उनको एक बार देखना चाहती थी। दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस। और मुझे लगा कि वो इसी एड्रेस पर होनी चाहिए थी। आई वॉन्टेड टू सी दैम टच। मैं उन सारी चीज़ों को एक बार फिर से छू के अपनी मदर का एहसास करना चाहती थी, जो मेरी मदर उनको छुआ करती थी, यूज़ किया करती थी। तो उन सारी चीज़ों, मेरी मदर तो थी नहीं जिसको मैं वो छू के एहसास कर सकूँ, तो उन चीज़ों को ही छू के मैं अपनी मदर का एहसास करना चाहती, ये उसके कहने का मतलब है। तो इसलिए वो वहाँ पर गई थी। अब इसके बाद वो दोबारा वहाँ जाती है। एंड वॉट वुड हैपन व्हेन शी विजिटेड अगेन सेकेंड टाइम, वी विल सी इन आवर नेक्स्ट चैप्टर, in our next class. So until then, you just add new words in your vocabulary, go through the chapter, read and again and write down the notes I am sending you. So up to then, have a good time and goodbye. Thank you.